Hello everyone and welcome to Dinesh Sir Engineering YouTube channel. So in today's lecture we are going to discuss about looping. So before I start with the looping, see sometimes you are having a notification in the phone and again you are checking because you have multiple notification coming. और sometimes you are just scrolling the reel repetitively. तो यहाँ पे हम already loop in real life use कर रहे हैं. So programming में भी अगर हमें एक ही statement को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, हम लूप का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. फाइन. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस loop in Python and especially in this particular video we are going to learn for loop in Python in detail. So repeat the task easily with Python. So आपको अगर सपोज से 100 स्टूडेंट्स का रोल नंबर आपको प्रिंट करना है, so is it feasible to type print roll 1, print roll 2, print roll 3 100 times? No, it becomes a tedious task. आपको आउटपुट तो देगा पर आप 100 टाइम्स एक ही लाइन को हम बार बार लिख रहे हैं, दैट मेक्स इनएफिशिएंट प्रोग्राम. सो प्रोग्रामिंग हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप स्टेटमेंट को एक ही बार लिखो और उसे मल्टीपल टाइम्स कॉल करो. सो दिस इज व्हाट रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट again and again till the condition become false. Fine. So loop help execute a block of code multiple times. एक ही block of code को हम multiple time execute कर सकते हैं. So avoid repetition using for and while loop. So Python में हमें सिर्फ दो ही loop की facilities है, for loop and while loop. Fine. So loop execute statement repetitively until a condition become false. So what are loop? So loop मतलब आप एक ही statement को continuously और repetitively use करोगे until the condition become false. Think as it is. Repeat this task until the condition is failed. Fine. So this is what the loop says. So types of loop in Python. In Python we have two types of loop. One is for loop. अब डिफरेंस क्या है, लूप मतलब फॉर लूप एंड वाइल लूप, दोनों का फंक्शनैलिटी क्या है, सेम ही है. दैट मीन्स वी हैव टू रिपीट पर्टिकुलर स्टेटमेंट until the condition is false. So in for loop fixed number of repetition is known by the user. हमें पता है कि कितनी बार ये रिपीट होने वाला है एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट. सो if we know in advance कि how many number of times I am going to repeat this block, then I will be using for loop. While loop means what? We don't know how much time I am going to repeat the particular block of code. So it will run until the condition is false. So दोनों का functionality same ही है, वो repeat करेगा task को, but difference क्या है? In for loop हमें पता है पहले ही कि कितना बार ये repeat होने वाला है, but in while loop we are going to set certain criteria कि आपको repeat करना है until the condition become false. Fine. So it also include control statement. Sometimes हमें loop को बीच में ही break करना है. So we control the loop by using these statement like break, continue and pass. So these again are the keywords of Python. Fine. So let's see for loop. So for loop is nothing but used when a number of iterations is known. Iteration means what? A same set of statements को हमें repeat करना है number of times. So इसको हम बोलते हैं iteration. एक statement को बार बार execute करेंगे until the condition is false. Fine. So इसका syntax क्या है? For loop का syntax is little bit different when compared to other programming language. So in Python especially for loop का जो syntax है, so for ये जो वेरिएबल है इसको हम बोलते हैं आउटपुट वेरिएबल. इसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट वेरिएबल. आई विल टेल यू हाउ इट एग्जीक्यूट. फॉर वेरिएबल इन इज अ कीवर्ड. अगेन इन सीक्वेंस. सीक्वेंस मीन्स आपका जो नंबर ऑफ आइट्रेशन आपको रिपीट करना है, क्या कितना रिपीट करना है, तो यहाँ पे हम उसको कहते हैं सीक्वेंस. और इसके बाद इस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा. Fine. So here you see an example for I. So I is a output variable. That means जो भी sequence में है पहले वो हम variable में for output variable में डालेंगे
और वहां से ही उसको हम डिस्प्ले कराएंगे, इसलिए उसको हम बोलते हैं आउटपुट वेरिएबल। सो एक एग्जांपल देखो, फॉर i in range. Now what is range? So we are going to learn in detail about the range function, which is especially used with the for loop in Python. Fine. So range मतलब आपको 1 से शुरू करना है, ओके, एंड ये 6 है, ओके, मतलब आपको स्टॉप करना है टिल 5, क्योंकि इन पाइथन रेंज में इसको हम बोलते हैं स्टार्ट, आपको कहाँ स्टार्ट करना है, और इसको हम जब देते हैं एंड, and please remember in Python end is nothing but end minus 1. So it starts from 1 or it will print till 5, not 6. Fine. So for I in range, अब range में first हम start कर रहे हैं 1, तो अब ये 1 जाएगा I में और उसे वो print करेगा. Again you see in syntax it is colon, that means यहाँ पे ये इस ब्लॉक के अंदर आ रहा है फॉर एग्जीक्यूशन, और इस ब्लॉक को वो तब तक रिपीट करेगा जब तक यहाँ पे रेंज 5 तक ना पहुंच जाए. जैसे ही 5 तक पहुंच जाएगा इट विल कम आउट ऑफ द फॉर ब्लॉक. क्लियर? फाइन. सो हियर, सॉरी, सो दिस इज सिंटैक्स वेयर फॉर ईच आइटम इन सीक्वेंस, आप यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं, आप उसको हम एलिमेंट्स बोल दो या वैल्यू बोल दो या आइटम बोल दो, और वो एक ऑर्डर में है और उसे आपको एग्जीक्यूट करना है या उसे आपको रिपीट करना है जब तक आप उस ऑर्डर के और उस सीक्वेंस के एंड तक ना पहुंच जाओ. फाइन. सो इट विल आस्क इज लास्ट आइटम रीच्ड? नो. सपोज जो अज्यूम करो यहाँ पे 1 2 3 4 5, you have to print all the numbers in sequence order. Fine. So first I am printing 1. Okay. So it is asking कि last number है? नहीं, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे numbers है जो हमें print करना है. So if it is false, again वो क्या करेगा? Repeat करेगा, फिर वो second number को check करेगा. Is it a last item? No. तो वापस से क्या करेगा? वो loop को execute करेगा till it reaches 5. 5 के बाद कोई value है? इज लास्ट आइटम रीच? यस. तो उसको क्या करेगा? लूप से एग्जिट होके वो बाहर आ जाएगा. सो इट विल रिपीट अंटिल द कंडीशन इज satisfied. So range function in Python, this particular function is an inbuilt function and especially it is used with for loop in Python. Range मतलब अगर आपको कोई भी एक वैल्यू, स्पेशली द इंटीजर वैल्यूज या नंबर आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, तो हम यूज करते हैं रेंज फंक्शन का. फाइन. सो रेंज जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर यूज्ड इन फॉर लूप टू कंट्रोल द iterations. So if I want to print the number from 1 to 100, अब ये 1 to 100 एक नंबर है, so it is say it's a sequence of number, sequential order में है. Fine. So if I want to print some numbers which is also having in sequential order, then I can go and make use of this range function, which is one of the good feature which is given by the developer to the programmer to make use of this range function. So इसका syntax क्या है? Fine. So range and it has an 3 arguments: start, stop and step. Start means what? Beginning value. So by default इसका value 0 रहेगा. Fine. So अगर आप कुछ value नहीं दे रहे हो start का value, तो it will start from 0. Stop means what? Ending value. But ending value is exclusive. So whatever value you are giving, which is nothing but end equal to end minus 1. So it is exclusive. Step means increment the value. By default अगर आप कोई step नहीं दे रहे हो, like previous example है, previous slide में मैंने सिर्फ एक ही range दिया है 1 because it starts from 1. अगर मैंने कोई range नहीं दिया है, directly if I have given 6, so it start from 0. पर मैंने step नहीं दिया था. Fine. So by default वो एक एक value को वहाँ पे increment करेगा. Fine. Okay. So for example say in this example single argument, कितने argument का syntax है? 3 arguments का syntax. Fine. It is a compulsory to give all the 3 arguments in syntax? No. So we are going to see how we are going to make use of the arguments. Fine. So here single argument. So for I in range 5, मैंने यहाँ पे 5 दिया है.
विच इज़ बेसिकली नथिंग बट एंड वैल्यू। यहाँ पे मैंने स्टार्ट वैल्यू नहीं दिया है, मैंने यहाँ पे एंड वैल्यू ही दिया है। सो इट विल कंसिडर बाय डिफॉल्ट वो कहाँ से शुरू करेगा, स्टार्ट 0 से शुरू करेगा। फाइन, सो फॉर आई इन रेंज 5, सो अब इट विल एग्जीक्यूट फ्रॉम 0 to 4। सो प्रिंट आई, तो पहले प्रिंट करेगा, पहले वैल्यू क्या था 0, इट विल प्रिंट 0। सेकेंड व्हाट 1 2 3 4। as soon as it will reach 5, it will come out of the for loop. Fine, if you are using a single argument, starts from 0 and goes till 4, stop not included। जो भी वैल्यू आपने 5 दिया है वो वहाँ पे इंक्लूड नहीं करेगा। फाइन, सेकेंड एग्जाम्पल इज स्टार्ट एंड स्टॉप। मैंने स्टार्ट भी दिया है, मैंने स्टॉप भी दिया है। समटाइम्स आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम 0, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे स्टार्ट देना है, डिफ़ॉल्ट वो 0 लेगा, बट मुझे स्टार्ट कुछ नंबर से चाहिए, देन आई एम गोइंग टू इंक्लूड रेंज स्टार्ट एंड स्टॉप। सो फॉर आई इन रेंज आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1। इफ आई एम नॉट गिवन 1, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, लेकिन मुझे 1 से चाहिए। फाइन, अगर मुझे रोल नंबर डिस्प्ले करना है स्टूडेंट का फ्रॉम 1 to say 61, सॉरी 1 to say 60, मेरे क्लास का स्ट्रेंथ है 60 स्टूडेंट्स का, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, क्योंकि 0 कोई रोल नंबर नहीं होता है। सो इस कंडीशन में आपको स्टार्ट भी देना है। फाइन, 1 एंड आई हैव टू गिव 61, क्यों, क्योंकि 61 को वो एक्सक्लूड करेगा। इफ आई वॉन्ट टू प्रिंट द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट whose starting roll number is 1 and ending roll number is 60, पर मुझे end वहाँ पे क्या देना है 61, because end equal to end minus 1। so यहाँ पे I have given 1, so it will print 1 2 3 4 5 6, उसे exclude करेगा। so starts at 1 and before 6 whenever you are going to give 2 arguments। okay, now third one is a step value। for I in range मैंने स्टार्ट भी दिया है, मैंने स्टॉप भी दिया है। फाइन, दैट मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इट विल एंड टिल, इट विल डिस्प्ले टिल 9, बिकॉज यहाँ पे आई हैव गिवन 10। अगर आपने सिंटैक्स में देखा था कि डिफॉल्ट इंक्रीमेंट इज 1, अगर यहाँ पे मैंने स्टेप का वैल्यू नहीं दिया है तो वो क्या डिस्प्ले करेगा 1 2 3 4 5, बट यहाँ पे मैंने स्टेप का साइज दिया है 2, that means it will skip one value and every second value it will print। fine, so output, suppose say it starts from 1, okay, so I'll just take 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। okay, okay, now start, ये क्या है आपका start है। okay, यहाँ पे क्या दिया है आपने, end दिया है। fine, so step क्या दिया है यहाँ पे 2 दिया है, that means every second value you have to print। so 1 I have print। okay, so मैंने second value को skip करके every second value, step 2 means every second value, so which is 3, which will print। now I'll just skip fourth value and after that second value क्या होगा इसके बाद fifth value, so 5 7 and 9। so when I give you write a program to just display the odd numbers or say even numbers, तो आप ये range का function use करके easily वो program को आप easily execute कर सकते हो। so it increments by 2 each time, every time वो increment 2 करके आपको second value fetch करके देगा। fine, what if I have given 3, step का size अगर मैंने 3 दिया तो so it will start 1, then every third value क्या हो गया 4, then 7, okay 8 9, लेकिन 10 तो end है तो 1 4 7 it will print। so step means what, increment by 1 by default। if you want to increment by 2 or if you want to increment by 3, then you can give the range here। so this is what the use of step in this particular range function। now reverse range, I have given for I in range 10, 0, okay, 10 से शुरू करना है और 0 तक जाना है, and here I have given -1। so in Python -1 refers to the reverse order, so it will start from 10, okay, and it will go till 1 because 0 दिया है, that is last। so -1 means what, in reverse order if you want to display the value you can give -1 or -2 for the reverse order। so negative step is equal to reverse the loop।
जितना नेगेटिव नंबर्स होगा उतना वो रिवर्स करके आपको देगा. So these are the use of range function especially in for loop. Okay, so summary means what? You have to remember some common mistakes student used to do, that its stop value is not included. So हमेशा याद रखो stop value include नहीं होगा. अगर मैंने 10 दिया है तो 9 तक ही वो execute करेगा. Step cannot be 0. It will always increment by from 1. डिफॉल्ट वैल्यू क्या है आपका 1 से ही शुरू होगा. अगर आपने स्टेप नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट इट विल कंसिडर एज 1, बट 0 नहीं हो सकता है. ओके, यूज नेगेटिव स्टेप फॉर रिवर्स लूप. अगर आपको रिवर्स में वैल्यू प्रिंट करना है देन यू कैन यूज दिस नेगेटिव स्टेप. जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है -1 -2 देके आप नेगेटिव में रिवर्स में आप अपना लूप को डिस्प्ले कर सकते हो. सो रेंज फंक्शन इज यूज्ड फॉर generate sequences. Sequences means what? In a sequential number, especially in numbers if you want to display. Okay, then we can directly use range function in for loop. Then we have range and 3 parameters: start, stop and step. And then stop value हमेशा exclude रहेगा and step control direction and increment. So this is what the use of range function. Right? Now फॉर लूप एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. ओके, मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है. ओके, बेसिकली दिस इज डेटा टाइप कॉल्ड लिस्ट. इन अपकमिंग वीडियोस व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न एडवांस डेटा टाइप, उसमें हम लिस्ट पढ़ेंगे. तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो ब्रैकेट्स हैं, क्योंकि पाइथन में हम कोई प्रोग्राम में कोई ब्रैकेट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर ब्रैकेट्स का एक स्पेशल मीनिंग वहाँ पे असाइन किया है. फाइन. सो इस एग्जाम्पल में आई एम जस्ट गिविंग लिस्ट. ओके, लिस्ट ऑलवेज enclosed in square bracket. और यहाँ पे मैंने कुछ नाम दिया है, अमन, रिया, किरण, नेहा, राज. ओके, सो मुझे यहाँ पे फॉर लूप इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे पता है कितने स्टूडेंट्स को मुझे यहाँ पे ग्रीट करना है. सो आई नो इन एडवांस ओके हाउ मच टाइम आई हैव टू रिपीट टिल राज. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग फॉर लूप. ओके, नाउ दिस इज आउटपुट वेरिएबल. आई टोल्ड यू दैट फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस. सो ये जो वेरिएबल है उसमें ये वैल्यू जाएगा. ओके, सो फॉर एस इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट इज अ वेरिएबल. ओके, अब ये वेरिएबल में क्या वैल्यू है? फर्स्ट वैल्यू क्या है? अमन है. तो अमन किस में जाएगा? एस में जाएगा. एंड इट विल प्रिंट हेलो. ओके, वॉट एवर यू आर गोइंग टू डिस्प्ले इन डबल कोटेशन इट विल बी डिस्प्लेड एज इट इज. सो हेलो एंड एस इज वॉट? अमन. पहले क्या वैल्यू था? अमन. सो इट विल फर्स्ट प्रिंट हेलो अमन. उसके बाद इट विल चेक एक और वैल्यू है सीक्वेंस में. येस, इट इज देयर. सो वो लूप को एग्जीक्यूट करेगा. नेक्स्ट वैल्यू इज व्हाट? रिया. सो अब स्टूडेंट में सेकंड वैल्यू क्या है? रिया. तो वो रिया किस में जाएगा? एस में जाएगा. ओके, सो प्रिंट हेलो, एस में क्या है? रिया. सो इट विल रिपीट टिल राज. ओके, सो राज के बाद कोई वैल्यू है? नहीं है. तो उसके बाद इट विल कम आउट ऑफ द फॉर लूप बिकॉज द कंडीशन बिकम्स फॉल्स देयर. सो प्रिंट greeting for every student automatically till it reaches the end of the sequence. Fine. Okay, so we'll see few more example using this for loop. First example, print each character in a string. अब पहले हमने जो डेटा टाइप देखा है वो लिस्ट देखा था because it is enclosed in square bracket. Here I am going to display each character present in the string. Because whatever you are enclosed in double quotation, it will be considered as what? String. Fine. So यहाँ पे मैंने दिया है string. इसको हम क्या बोलते हैं? Sequence. Okay. We are given sequence. अब हमें एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करना है. Okay. So वो कहाँ पे डालेंगे हम? एक वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल ch मैंने लिया है. So आउटपुट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे मैंने ch दिया है, but you can take whatever variable name you want, but it should be abide with the rule of the variable. Fine. अब फर्स्ट वैल्यू क्या है? p है. तो ch में क्या है? p है. तो उसने प्रिंट किया है यहाँ पे p. सेकेंड वैल्यू क्या है? y. So it will repeat till it reaches the end of the character which is n. n के बाद कोई वैल्यू है? नहीं. It will come out of the loop. Fine. So you can also ask me, ma'am, can we print like this? p y t h o n in horizontal way, not in a vertical way. So how we can do? You can easily do. So here I am just writing for ch, same variable में ले रही हूँ, in
ये मेरा सीक्वेंस है, ओके, विच इज टाइप स्ट्रिंग, एंड यू हैव टू गिव कोलन, अदरवाइज इट विल थ्रो एन एरर, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं print, I am giving ch, same I have given ch, fine. But if I want to print horizontally, not vertically, then you have to give comma and you have to use and equal to, open the curly bracket and close the curly bracket, simple, okay. You can try this, okay. So it will print the value character, each character in horizontal, not in vertical. हमने सिर्फ क्या इंक्लूड किया है, हमने यहाँ पे एंड इक्वल टू और सिंगल कोटेशन और या डबल कोटेशन में आप ओपन और क्लोज कर सकते हो, क्लियर। सो दिस इज यूजिंग कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग टू एग्जीक्यूट. Second one is you have to count sum of numbers, you have to total sum of number from 1 to 10. मतलब आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 टिल प्लस 10 आपको क्या करना है, ऐड करना है. तो हम ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिपीट ही कर रहे हैं ना, क्या हम एक एक नंबर को हम ऐड कर रहे हैं. फाइन. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू, सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेक द रेंज फंक्शन. आई एम गोइंग टू यूज द रेंज फंक्शन. वाई, बिकॉज इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर. मैंने 1 to 10 दिया है, ओके. अगर आपने 1 to say 15 and you can use odd numbers, then also we can make use of range function. but यहाँ पे हमने directly sequence में दे दिया है 1 to 10, so it will be easy for me to use the range function. तो पहले मैंने यहाँ पे sum मतलब क्या है, जो output होगा वो यहाँ पे इस particular variable में मुझे store करना है. फाइन. सो पहले sum में क्या है, ओके, मैं यहाँ पे value ले लेती हूँ. ओके, how I will tell you how to execute. 0 है, मैंने पहले यहाँ पे sum equal to 0 दिया है. अब मैंने लूप स्टार्ट किया है. फॉर I is what, an output variable in range 1, 11. ओके, सो 1 से मुझे क्या करना है, 10 तक टोटल करना है. सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन 1 एंड 10 इज व्हाट, लास्ट वैल्यू. तो हमें एक्सक्लूड करना है लास्ट वैल्यू को. सो आई हैव टू गिव 11 सो दैट आई कैन एक्सक्लूड 11 एंड आई विल रिपीट टिल 10. ओके, नाउ आफ्टर दैट सम इक्वल टू, सम में क्या वैल्यू है, 0 है. ओके, सम इक्वल टू सम प्लस आई. आई में क्या वैल्यू है, 1. ओके, तो 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1 हो गया. फाइन. तो अब सम में क्या हो गया, सम में हो गया 1. फाइन. नाउ अगेन यू कैन सी, हमें तो टोटल 10 तक वी हैव टू एग्जीक्यूट, वी हैव टू डू द आइट्रेशन. सो इट विल चेक, ओके, लास्ट नंबर 11 है क्या, नहीं आया. लास्ट नंबर क्या है, 2 है, सॉरी सेकेंड नंबर क्या है, 2 है. सो सम इक्वल टू सम प्लस आई. सो ऑलरेडी सम में क्या है, 1 और आई में अभी क्या वैल्यू आ गया है, 2. सो 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3. सो यहाँ पे सम क्या हो गया, 3 हो गया. ओके, नाउ थर्ड वैल्यू. तो थर्ड वैल्यू is there, so sum equal to sum plus I. Sum already we have 3, so 3 plus 3 we have 6. So now sum value is 6. So this will repeat till the sum value comes 10. उसके बाद जब फाइनली आपका जो सम रहेगा, आप ये रिपीट करना, फाइनली आपके पास 55 होगा. फाइन. नाउ व्हेन इट कम्स 11, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो लूप से बाहर आ जाएगा. और फाइनली हमें सम में क्या वैल्यू है, 55. सो इट विल प्रिंट सम इक्वल टू 55. सो आउटपुट क्या है, टोटल इक्वल टू 55. सो व्हाट इज द प्रोग्राम, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. से 1 से 10 का हमें सम करके उसका डिस्प्ले करना है. सो वी हैव यूज द रेंज फंक्शन इन फॉर लूप एंड वी हैव इजीली एग्जीक्यूटेड. सो कॉन्सेप्ट क्या दिया, अक्यूमुलेट वैल्यूज यूजिंग लूप. पहले मैंने क्या किया, अक्यूमुलेट करती गई वैल्यूज को, सब में जोड़ती गई. 1 के बाद प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 करके आई हैव अक्यूमुलेटेड द वैल्यू using loop and finally I have displayed the total. Fine. So this is the second example using for loop. Okay. Print even numbers. मुझे सिर्फ even numbers ही print करना है. So it is very easy because we now know how to use the range function. Fine. So for I in range, directly you can give step also, okay, or I have used if condition. So basically why, because I am going to show you inside the for loop also we can have some conditional statement. Directly आप 11 करके step भी दे सकते हो और आप even numbers print कर सकते हो.
बट यहाँ पे लूप के साथ मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज किया है. So print only even numbers from 1 to 11 or from 1 to 15, whatever range it is given. So I have taken from 1 to 11. मतलब रेंज मुझे 2, 4, 6, 8, 10 प्रिंट करना है. For I in range 1. So first is what? 1. If I is I modulus 2 equals 0. नहीं, क्योंकि रिमाइंडर तो 1 आएगा. So 1 is equals 0. No. So second value, so it will print this one. ये लूप के अंदर कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ ही नहीं है, तो इट विल नॉट एग्जीक्यूट दिस प्रिंट आई स्टेटमेंट. सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगा, सीक्वेंस में 2 आ जाएगा. सो मॉडुलस 2 मॉडुलस 2 इक्वल्स 0, कंडीशन इज ट्रू, सो इट विल प्रिंट वैल्यू 2. सो लाइक दिस इट विल प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम द गिवन रेंज. सो कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है हमने, कंबाइन किया है लूप विद इफ कंडीशन. फाइन. नेक्स्ट वन इज टेबल ऑफ अ नंबर. सो 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6. हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं. 2 टेबल को 10 टाइम्स तक या फिर 15 टाइम्स तक हम रिपीट कर रहे हैं. तो वी आर यूजिंग लूप हियर. फाइन. सो हाउ वी आर गोइंग टू पुट इट इन अ प्रोग्राम. सो आई हैव टू राइट अ 5 टेबल. 5th टेबल 5 टेबल मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है. सो फॉर आई इन रेंज 1 to 11, मतलब 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, टिल 5 10s are 50 मुझे करना है. इसलिए मैंने यहाँ पे रेंज फंक्शन यूज किया है 1 to 11, और मैंने यहाँ पे नंबर ऑलरेडी सेट किया है 5. ओके. सो प्रिंट नम इज व्हाट 5, राइट. सो 5 पहले वो प्रिंट कर रहा है. यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन दिया है फॉर मल्टीप्लीकेशन. सो 5 into, तो ऐसे वहाँ प्रिंट होगा. आई में क्या वैल्यू है पहले 1. फाइन. सो 5 into 1 इज इक्वल टू 5. तो इज इक्वल टू नम में क्या है 5 इंटू आई में क्या है 1. सो 5 into 1 इट विल डिस्प्ले 5. फाइन. सो यहाँ पे नम का वैल्यू 5, एक्स ऐसे ही मैंने डबल कोटेशन में दिया है टू प्रिंट लाइक दिस. आई में फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगा 1 इक्वल टू नम का वैल्यू क्या है 5 इंटू 1 विच इज 5. सो इट विल डिस्प्ले. मुझे 5 10s are 50 तक ये टेबल को रिपीट करना है लूप में. फाइन. सो रेंज मैंने 11 तक दिया है. सो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 2. सो यहाँ पे 5 तो रहेगा ही रहेगा. ओके. एक्स तो प्रिंट होगा. आई का वैल्यू अब क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया. सो 5 into 2 विच इज इक्वल टू 10. फाइन. बिकॉज 5 into आई का वैल्यू, तो 5 इज कॉन्स्टेंट, आई का वैल्यू ही लूप में रिपीट होता जा रहा है. सो लाइक दैट इट विल डिस्प्ले. एंड लास्ट में 5 into 10 विच इज इक्वल टू 50. उसके बाद 11th वैल्यू आएगा नहीं, तो लूप से वो बाहर आ जाएगा. सो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, जनरेट मल्टीप्लीकेशन टेबल यूजिंग फॉर लूप. I hope you understand this program. Fine. Okay, next example, factorial of a number. This is very common example in Python programming or any programming language. So factorial means what? Suppose से मैंने यहाँ पे 5 factorial दिया है, तो factorial means क्या होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इसका multiplication करके, so 5 4 से 20 20 60 120 फॉर एग्जाम्पल से, तो इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर. सो इसे हमें कैसे प्रोग्रामिंग में लिखना है यूजिंग फॉर लूप विच आर गोइंग टू सी. सो फैक्ट इज व्हाट, क्योंकि वॉट एवर वैल्यू वी आर गिविंग बट वी रिक्वायर टू एंड एट 1, सो इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्ट इक्वल टू 1 दिया है. फाइन. मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिया है, मुझे 5 फैक्टोरियल चाहिए, इसलिए मैंने n इक्वल टू 5. सो 1 इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि हमें कोई भी वैल्यू, कोई भी फैक्टोरियल नंबर ले ले, लेकिन वहाँ पे आपको लास्ट में इंटू 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 करके 1 तक जाना है. फाइन. सो आई हैड गिवन 1 एंड n का वैल्यू मैंने क्या दिया है 5 दे दिया है, बिकॉज मुझे 5 फैक्टोरियल चाहिए. 5. सो फॉर आई इन रेंज, ओके, यहाँ पे प्लीज पे अटेंशन, फॉर आई इन रेंज 1 से शुरू हो गया एंड n प्लस 1, n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 हो गया है, राइट. So 5 plus 1, that means 6. So I have to exclude 6 and I have to keep 5. But why I have given n plus 1? Directly हमने क्यों 6 नहीं लिखा है? Let's see. So fact equal to, okay, तो range fact equal to fact into. So fact का value क्या है यहाँ पे 1, right? So 1 into 1. Clear? Now, so fact is 1 into i's value i's value is what 1. so 1 into 1, पहले फैक्ट में क्या आ गया 5 आ गया, 1 आ गया है. so यहाँ पे हम वैल्यूज को भी अक्यूमुलेट करेंगे लाइक प्रीवियस एग्जांपल. उसके बाद रेंज क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया. फाइन. सो फैक्ट का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 1 ही था. फाइन. सो आई विल जस्ट राइट हियर. सो फैक्ट इज व्हाट 1.
एंड फर्स्ट आई वैल्यू इज व्हाट 1. सो मल्टीप्लाई करके मैंने किस पे स्टोर किया है, फैक्ट के वेरिएबल पे स्टोर किया है विच इज 1. नाउ I will increment the I value. Fine. So fact equal to fact into I. I का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया. So 1 equal to 1 into 2. तो यहाँ पे fact का वैल्यू 2 हो गया है. Right. The same thing it will go 3, 4, 5. Okay. So n plus 1 6. Sixth वैल्यू मुझे यहाँ पे eliminate कर दिया because I have given n equal to 5. अगर आपने n इक्वल टू 5 मैंने इसलिए दिया टू नो इन एडवांस कि मुझे 5th फैक्टोरियल चाहिए. अदरवाइज यू कैन जस्ट रिमूव दिस लाइन and just give directly 6, then also you will get the same output. Fine. So finally output factorial of 5 is 120. So multiplying sequence using loop. हमने sum नहीं किया, हमने क्या किया है, multiply किया है of the sequence using loop. I hope you understand. Next one is nested for loop. Yes. So this is very interesting topic क्योंकि जब हम loop execute करते हैं, फाइन, लूप के अंदर एक और लूप, जैसे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट जो मैंने प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बताया था, वैसे ही लूप में भी हम नेस्टेड लूप यूज़ कर सकते हैं. और मोस्टली यहाँ पे वो पैटर्न्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, बिकॉज लूप के अंदर एक और लूप होता है. सो इनर लूप जो कॉलम को कंट्रोल करता है और आउटर लूप जो होता है वो रो को कंट्रोल करता है इन 2 into 2 डायमेंशंस. फाइन. सो मुझे ये मेरा आउटपुट है, फॉर एग्जाम्पल से आपको ये प्रिंट करना है. ऑलरेडी इट इज गिवन बट आई एम जस्ट राइटिंग वंस अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ओके ओके, ये मेरा पैटर्न विच आई वांट टू प्रिंट. क्लियर. सो दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम. नाउ जो इनर लूप होता है फॉर लूप वो कॉलम से कंट्रोल होता है और जो आउटर लूप होता है वो रो को कंट्रोल करता है. फर्स्ट व्हाट आई हैव टू प्रिंट 1 2 3 4. हाउ मेनी रोज आर देयर? टोटल 5 रोज आर देयर. फाइन. सो आई हैव टू स्टार्ट विथ फर्स्ट रो एंड आई हैव टू एंड विथ 5 रोज. सो आई हैव गिवन फॉर आई इन रेंज 1, 6. ये आपका हो गया आउटर लूप. ओके, यहाँ पे कंडीशन तो ट्रू है बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे देखो फॉर j, एक और वेरिएबल आ गया है आउट j इन रेंज 1. आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 बट यहाँ पे मैंने क्या दिया है i plus 1. सो i मीन्स वॉट, i का वैल्यू क्या होगा 1 और यहाँ पे रेंज का वैल्यू क्या होगा 2. सो 1 plus 1 विच इज 2. सो आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है. ओके, सो वेन एवर यू आर यूजिंग नेस्टेड लूप, इनर लूप पूरी तरह से एग्जीक्यूट करेगा टिल द कंडीशन बिकम फॉल्स. उसके बाद वो आउटर लूप में जाएगा. उसके बाद आउटर लूप वापस से कंडीशन को चेक करके अगेन इट विल कम टू द इनर लूप. फाइन. सो लेट्स सी, यहाँ पे मैंने j इन रेंज 1 दिया है और i का वैल्यू क्या है, ऑलरेडी 1 है. सो 1 plus 1 2. तो एंड वैल्यू इज 2. दैट मीन्स एंड इक्वल टू n minus 1. सो आपको 1, 1 आपको स्टार्ट करना है, आपको एंड 1 में ही करना है. तो उसके बाद प्रिंट क्या करोगे, प्रिंट स्टार. तो यहाँ पे वो फर्स्ट स्टार यहाँ पे प्रिंट हो गया है. ओके, अब इनर लूप का सेकेंड वैल्यू प्रिंट होगा नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया. सो इट विल कम आउट ऑफ द इनर लूप बट इट विल बी इन द आउटर लूप ओनली. वो लूप से एग्जिट नहीं हो रहा है, सिर्फ इनर लूप से एग्जीक्यूट हुआ है, एग्जिट हुआ है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नाउ, द वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 2 हियर. राइट. अगेन इट विल कम टू द इनर लूप. अब फॉर j इन रेंज, अब यहाँ पे क्या हो गया है, इट इज़ 1 क्योंकि ये डिफॉल्ट कांस्टेंट वैल्यू है, 1 से ही शुरू करो. पर यहाँ पे i का वैल्यू क्या हो गया 2 plus 1 3. सो 1, 3. राइट. सो 1, 3. तो एंड इज वॉट, तो 2 तक आपको प्रिंट करना है. सो इट विल प्रिंट 1, इट विल प्रिंट 2. 3 प्रिंट करेगा नहीं करेगा क्योंकि वो एंड है. राइट. अब यहाँ पे 2 तक प्रिंट करने के बाद अगेन इट विल कम आउट ऑफ द इनर लूप बट अभी तक आउटर लूप का कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, it becomes 3. Okay, after that again it will come to the inner loop and now what is the value of 1, 3 plus 1 4. So it will print 1 2 3 क्योंकि 4 is nothing but 4 equal to 4 minus 1 3. So it will repeat till
the outer loop condition become false. Clear? So basically nested loop में outer loop का condition पहले check करेगा, उसके बाद inner loop में आएगा, then inner loop पूरी तरह से execute करेगा, and after that again it will exit from the inner loop, but it will not exit from the outer loop. Loop कब exit होगा? जब पूरा outer loop का condition false हो जाएगा, then only it will exit from the entire loop. So this is what the nested for loop pattern printing. So inner loop controls the column, outer loop controls the row. Fine. So these are the practice questions. So today in detail we discuss about what is loop, especially what is for loop. In for loop, the iterations are known in advance. How many times I am going to repeat. If we know, then we have to choose. See, you can select either for loop or you can select while loop, but depends on what kind of application or what kind of statement you are going to execute. Based on that you have to select your loop. So अगर आपको पता है कि मुझे iteration इतना 5 तक iteration है, 7 तक iteration है, so I can make use of for loop. While loop में भी आपको answer देगा, but it is always better you go with the for loop. Fine. So these are certain practice questions that you have to do. So print 1 to 10 using for loop. You can either use range function or even without range function also you can type this particular program. Print all odd numbers between 10 and 30. आपको 10 से लेके 30 तक में जितने भी odd numbers हैं आपको उसको print करना है using for loop. Display cubes of all numbers from 1 to 10. So cube means what? So 1 cube, so 2 cube, 3 cube till 10 cube तक आपको display करना है using for loop. And print this pattern, reverse triangle. In last example I have shown you the straight triangle here, 5, 4, 3, 2, 1. Fine, that you have to print. So these are the practice questions that you need to perform. Fine, thank you.